Previous lecture we studied up to here. We had studied till here. Now we will start from here. Now this process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing. Underline the definition. And for this purpose a farming implement is used, that is plough. प्लाउज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. अब ये जो प्लाउ होते हैं ये या तो लकड़ी के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं. द प्लाउड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल. अब इसी खेत में जिसमें फार्मर को क्रॉप लगाना है हो सकता है इसमें मिट्टी के बड़े बड़े पीसेज हो. सो दीज बिग पीसेज ऑफ सॉइल आर कॉल्ड क्रम्स. अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ क्रम्स. नाउ फार्मर्स have to break these crumbs into very thin grain like particles. So the field is level for sowing as well as for irrigation purpose. This is done, the leveling of soil is done with the help of a leveler. So plough, leveler, hoe, sickle, seed drill, these all are farming implements which are used during farming. Sometimes manure is also added to the soil before tilling. कभी कभी फार्मर लोग खेत जोतने से पहले ही खेत में खाद डाल देते हैं. For what purpose? Underline. This helps in proper mixing of manure with soil, ताकि वो खाद मिट्टी में पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. And before sowing they irrigate the soil. मिट्टी में पानी भी डाला जाता है. नाउ फॉर ऑल द फार्मिंग वर्क फार्मर्स नीड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. दीज आर व्हाट आर द नेम ऑफ दोज इम्प्लीमेंट्स? प्लाउ, हो, कल्टिवेटर, सीड ड्रिल. सो दीज आर सम फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स. नाउ वन बाय वन वी विल सी. प्लाउ. Plough is used for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and scraping of soil. Underline, all are important points. This is the function of plough. Now plough is made up of wood and is drawn by a pair of bulls. In olden days, or some other animals like horses, camels, etc. Now what is the construction of this plough? Plough contains a strong triangular iron strip. See the diagram. This is the diagram of a plough. So you have to draw the diagram also. So plough contains a strong triangular iron strip known as ploughshare. So this is the iron strip. The main part of the plough is a long log of wood. This is the main part, the handle, you can say it handle, which is called plough shaft. So this is plough shaft and this is ploughshare. So these are the two parts, only two parts of this plough. At one end there is a handle, the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plough. तो इस प्लाउ को ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है और दो बुल्स की ज़रूरत पड़ती है. Now this wooden plough is replaced by iron plough. अब धीरे धीरे लकड़ी के प्लाउ ना होके लोहे के प्लाउ फार्मर्स यूज़ करते हैं. लकड़ी वाले प्लाउ ओल्डन डेज में पहले ज़माने में यूज़ होता था. सेकेंड फार्मिंग इम्प्लीमेंट इज़ हो. It is also a farming implement which is used for, underline the function of hoe, removing weeds and for loosening the soil. Weeds are unnecessary plants grows among the crops. जब मेन क्रॉप्स के बीच में कुछ ऐसे ही कुछ अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जो किसी काम के नहीं हैं तो फार्मर्स को उनको हटाना पड़ता है. तो these weeds are removed by hoe. Hoe is also used for loosening the soil. Now what is the construction of hoe?
इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। अगेन इसका भी जो वो रॉड है या तो वो लकड़ी का बना होगा या फिर आयरन का बना होगा। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ hoe. Underline, you have to draw the diagram which works like a blade. This is bent plate. This works like a blade. It is pulled by animals. इसको भी यूज़ करने के लिए जानवर का इस्तेमाल करना पड़ता है। थर्ड इज़ कल्टीवेटर. नाउ दिस इज़ कल्टीवेटर. Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. अब कल्टीवेटर के लिए दिस इज़ द फार्मिंग इम्प्लीमेंट कल्टीवेटर. अब इसके लिए किसी एनिमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो इट इज़ पुल्ड बाय ट्रैक्टर. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कल्टीवेटर या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर? वाई फार्मर्स यूज़ कल्टीवेटर? वाई नॉट हो, वाई नॉट प्लाउ? इट सेव्स लेबर एंड टाइम. मेहनत भी कम लगती है और समय की भी बचत होती है. सो दीज आर सम फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स. नाउ कम टू द टॉपिक sowing. Sowing is the most important part of crop production. बीज बोना, sowing मतलब बीज डालना, मिट्टी में बीज डालना. अब फार्मर्स लोग बीज तभी डालेंगे जब उनके पास उनको इतनी अकल होगी या उनको इतनी समझ होगी कि सीड गुड क्वालिटीज़ के हैं या पुअर क्वालिटीज़ के हैं. अभी उनको कैसे समझ में आएगा? जब वो बाज़ार में मार्केट में परचेज़ करने जाएंगे तो अगर शॉपकीपर ने उनको ठग लिया या उनको चीट किया, उनको गुड क्वालिटीज़ की जगह पुअर क्वालिटीज़ के सीड दे दिए, तो फिर फार्मर को तो लॉस हो जाएगा. तो हाउ विल अ फार्मर कम टू नो दैट द सीड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी? गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन. ये खासियत है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड. दे आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी. तो वो एकदम साफ़ सुथरे दिखेंगे. फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. अभी हर फार्मर चाहेगा कि वो अपने खेतों में, वो अपने मिट्टी में वैसे ही सीड डाले जिससे उसके क्रॉप भी हेल्दी हो और वो मार्केट में उनको सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके. नाउ सिलेक्शन ऑफ सीड्स. अभी हाउ विल अ फार्मर कम टू नो वेदर द सीड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी और गुड क्वालिटीज़? अभी देखो घर में जैसे हम लोग चना वगैरह बनाते हैं तो उसके एक दिन पहले ही रात में हम लोग चना भिगो देते हैं पानी में. तो वो जो कच्चा चना भिगोते हैं तो दूसरे दिन सुबह देखोगे वो सारा चना फूल जाता है थोड़ा, क्योंकि उस चने ने उस सराउंडिंग पानी में से थोड़े से पानी को एब्जॉर्ब किया, तो इसकी वजह से वो चना जो है वो फूल जाता है. लेकिन देखोगे कि कुछ चना जो है ऊपर फ्लोट हो रहा है. ज़्यादातर चना तो पानी के अंदर सिंक रहेगा, डूबा हुआ रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहेंगे, 10-12 दाने ऐसे भी होते हैं जो ऊपर फ्लोट होता है पानी के. क्यों वो ऊपर फ्लोट हुआ? इसका मतलब ही है कि उस चने के अंदर कुछ नहीं है, दैट इज़ हॉलो, पूरा खोखला है वो. तो अगर हम उसको कुछ पकाएंगे भी तो वो किसी काम का नहीं है, तो इसके लिए हम लोग वो फेंक देते हैं. तो वो सीड्स मतलब वो डैमेज सीड है, दैट इज़ नॉट एट ऑल ऑफ गुड क्वालिटी. तो फार्मर्स लोग भी जब सीड का सिलेक्शन करते हैं तो उसी तरह करते हैं. वो भी पानी में भिगो के देखते हैं. अगर सारे सीड पानी के अंदर डूब गए तब तो वो गुड क्वालिटीज़ के हैं, लेकिन अगर जो सीड्स ऊपर फ्लोट होने लगे इट मीन्स ऑल द सीड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटीज़. सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन डैमेज सीड्स एंड गुड क्वालिटीज़ ऑफ सीड. सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड. नाउ ट्रेडिशनल टूल. ये कुछ ऐसे टूल जो पहले यूज़ होते थे. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स. ये कुछ ऐसे फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स हैं जो बीज बोने के लिए पहले यूज़ किया जाता था. इट वॉज लाइक अ फनल. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल. ये है फनल, इसमें ये लोग बीज को डालते हैं. देन पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स. अभी इसमें से 2-3 पाइप लगे हैं, तो ये जब ऐसे जैसे ही सीड्स को फनल में डाला तो वो पाइप के ज़रिए वो मिट्टी के अंदर जाते हैं. These ends peers into the soil and place seeds there. तो ऐसे करके 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 ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं जानवर की मदद से. तो हर जगह मिट्टी में इन्हीं पाइप्स के ज़रिए सीड जाता रहता है, डालते रहते हैं ये लोग. सेकेंड इज़ सीड ड्रिल. Nowadays the seed drill is used. ये हमारा अभी का है, नया, recent
फार्मिंग इम्प्लीमेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। लेकिन ट्रैक्टर्स सारे फार्मर्स एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जिनके पास थोड़े पैसे होते हैं ओनली दे कैन परचेज ट्रैक्टर्स। सो नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अभी इसका बेनिफिट, दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस। इसका यही बेनिफिट है कि इसमें सीड्स के बीच में बहुत डिस्टेंस रहता है और ये एकदम एक जैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा गिर गया इधर कम गिर गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे मिट्टी में। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। और ये सीड्स बिल्कुल मिट्टी के अंदर भी जाते हैं, तो अगर कोई पक्षी आया, बर्ड आया और चाहेगा कि हाँ भाई सीड दिख रहा है मैं डैमेज कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर।